I have a question for you guys. Can India actually challenge Singapore and Dubai and become the global financial hub of the future? मतलब सोचो, करेंसी सेटलमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लोज, ग्लोबल एमएनसी बैक ऑफिसेज, सब कुछ इंडिया से ऑपरेट होगा. Sounds crazy, right? So sit with me till the end and I'll show you why this is not a fantasy but a path India is already walking. Because India has one key advantage with its GCCs plus outsourcing plus talent plus policy momentum. Let's dive right in. सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल हब बनता कैसे है. सिंगापुर, दुबई सक्सेसफुल है क्यों? Let's check some tick boxes. First, currency clearing and settlement infrastructure. Second, strong regulatory architecture plus legal framework. Deep capital markets plus financial instruments. Fourth, global trust and stability. Fifth, ease of doing business plus incentive systems. Sixth, talent, digital infrastructure, connectivity is amazing. If India wants to compete, हमें ये सारे check boxes tick करने पड़ेंगे. अब let's talk about India की strengths के बारे में. First is GCCs का boom, global compatibility centers. आज इंडिया सिर्फ बैक ऑफिस नहीं रहा, GCCs यहाँ R&D, प्रोडक्ट डिजाइन, फाइनेंशियल प्लानिंग सब कुछ कर रहे हैं. फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया के GCCs का रेवेन्यू $64.6 बिलियन था और 1.9 मिलियन लोग एम्प्लॉय हुए हैं. By 2030, that market is expected to grow to 99 या 105 billion dollars. Next point is cost and talent advantage. यार इंडिया सबको पता है offers digital talent at lower cost, 24/7 productivity and a huge young population. Cities like Bengaluru, Hyderabad, Pune, NCR are already hosting command centers of GCCs. Next point, Gift City में Standard Chartered Bank October 2025 से डॉलर क्लियरेंस स्टार्ट करेगा. भाई ये एक huge sign है कि इंडिया फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है. कर्नाटका aims to double GCCs by 2029 with incentives and jobs. India's GCC market is projected to grow from $64.6 billion in financial year 24 to 99 to $105 billion by 2030. And यार honestly यार ये सब इतना आसान नहीं है. Obviously इसमें challenges बहुत सारे आते हैं. India must ensure investor protection, arbitration, stability of financial laws. ठीक है. दूसरा point, global investors must see India as equally stable as Singapore or Dubai. Next, करेंसी सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रांडिंग. इंडिया को एक स्टेबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन बन के दिखाना होगा. एंड इफ यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्लीन पावर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर सब कुछ इंक्लूड होता है. एंड ऑब्वियसली यार इंडिया नीड्स मोर पीपल ट्रेन्ड इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डेरिवेटिव्स एंड ग्लोबल फंड्स. अब ऐसे ही ना एग्जाम्पल के थ्रू एक चैलेंज को समझते हैं. GCCs बूम कर रहे हैं बट ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग स्ट्रगल कर रहे हैं. इन फाइनेंशियल ईयर 2024 GCCs grew approximately 40% while top Indian IT firms had a low or the negative growth. मतलब तुम समझ रहे हो, इंडिया को शिफ्ट करना होगा चीप लेबर मॉडल से हाई वैल्यू फाइनेंस और इनोवेशन मॉडल पे. दिस इज टफ ऑब्वियसली बट ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है आज के टाइम में. अब ना हर बंदे को केस स्टडी से और क्लियर होता है. फर्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने डिसाइड किया है कि वो गिफ्ट सिटी से US डॉलर सेटलमेंट करेगा. ये सिर्फ प्लान नहीं है, ये एक एग्जीक्यूशन है. सेकंड, GCC is promoting Indian executives to global leadership. According to Economic Times, GCC in India are becoming talent incubators. मतलब people working in India, GCC are rising rapidly, बहुत तेजी से rapidly grow कर रहे हैं and are into C-suite globally. Third point, Carl Zeiss ने एक open किया है tech focused GCC in Bengaluru, which is focusing on cloud, cyber security, etc. to show that global firms trust Indian tech and its financial ability. Now we move on to the next part. Imagine करो future, global banks India में ही फॉरेक्स और USD सेटलमेंट्स कर रहे हैं. एसेट मैनेजमेंट और फंड रजिस्ट्रेशन यही हो रहा है. इंडिया फिनटेक और डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहा है. आज GCC है, कल गिफ्ट सिटी के थ्रू एक पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल हब हो सकता है. तो अब आखिरी सवाल ये है कि क्या इंडिया ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन सकता है? आंसर है यस. अगर हम अपनी स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करें और रेगुलेशन प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाए, देन डेफिनेटली यस, ग्लोबल फाइनेंशियल हब इंडिया जरूर बन सकता है. और पता है स्टूडेंट्स के लिए ना इसका मतलब क्लियर है, डिमांड फॉर ग्लोबल फाइनेंस स्किल सिर्फ बढ़ेंगी ही. CFA, CMA US, FRM, ACCA ये सब आपको इस वेव का पार्ट बनने का चांस दे रहे हैं. सोचो आज की तैयारी कल इंडिया का फाइनेंशियल हब बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकती है. तुम्हें इनमें कोई भी किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट है तो डू एनरोल विद अस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.